Here we have for a transmission line, the sending end voltage and current can be related with the receiving end voltage and currents through ABCD parameters. इस इक्वेशन की पहले हमने बात की है, ठीक है, और इसमें हमें ये भी पता है कि AD minus BC is equal to 1, और यहाँ से because AD minus BC is equal to 1, so simply VR and IR they can be written as, इसका इनवर्स ले ले, इसका इनवर्स कैसे होगा, इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे की पोजीशन पे चेंज करते हैं, इन दोनों का साइन माइनस करते हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय इस मैट्रिक्स का मोड लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी AD माइनस BC इज इक्वल टू 1. सो सिंपली VR एंड VI दे आर इक्वल टू इन वेक्टर, ठीक है, D माइनस B माइनस A SIS, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. लेकिन इस इक्वेशन में D is another important fact is that A is equal to D, so this D it can be replaced by A as well, ठीक है. सो दिस मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स, इसकी इनवर्स जो मैट्रिक्स होगी, अगर रिसीविंग एंड की क्वांटिटीज पता है और तो ट्रांसमिशन जो सेंडिंग एंड है उसकी क्वांटिटीज can be obtained using this matrix, and if the sending end quantities are known to us, then we can compute the receiving end quantities by this matrix with the help of this matrix. और इस matrix में इस D को हम A से replace कर सकते हैं because A is equal to D, ठीक है. Now we are interested in finding an expression for the flow of complex power on a transmission line in terms of sending end quantities, ठीक है, in terms of ABCD parameters, ठीक है, how much power will flow, complex power will flow through the transmission line, ठीक है, जबकि sending quantities हमें पता है, ठीक है, और ये जो ABCD parameters पता है, तो उसके लिए हम एक expression find करना चाहते हैं in terms of these parameters, of course, ठीक है. So these parameters A, B, C and D parameters, of course they are complex, ठीक है, इन नेचर, बिकॉज ए पैरामीटर अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, इफ यू रिकॉल, तो उसमें ये ए पैरामीटर किसके बराबर था, ए प्लस स्मॉल जी, ए प्लस जी वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, जी भी कम्प्लेक्स है, वाई भी कम्प्लेक्स है, so their product divided by 2 plus another real number, so a complex number is there. Basically A, B, C, D ये complex numbers हैं. किसी भी complex number को हम उसका magnitude और उसके phase angle से हम represent कर सकते हैं. Therefore this A complex number, A parameter जो है transmission line का, उसको हम लिख सकते हैं A का magnitude और इस फिर A का angle, because it is a complex number, ठीक है. Similarly B can be written as B का magnitude and angle of B, ठीक है, but at the sending end voltage of course it is equal to VS angle delta sending end का, और receiving end के voltage को हम reference लेते हैं, इसके angle को हम 0 लेते हैं और उसका magnitude is VR, ठीक है. So VS is known to us, ठीक है, और VR और बीटा है और A है. In terms of these quantities I am interested in finding the power that will be received at the receiving end, that will be delivered by the transmission line. How much power will delivered by the transmission line in terms of transmission line, in terms of ABCD parameters, or sending end or receiving in voltage के फॉर्म में, ठीक है. So it's very very simple. यहाँ पे अगर मैं A लिख दूँ, because here I am interested in finding IR is equal to VS delta minus A angle theta, because everything this right, rather than writing A here, यहाँ पे हम A लिखते थे, लेकिन यहाँ पे A को in terms of इसके फेजर में हम लिखते हैं, ठीक है. So here we have IR इस इक्वेशन में अगर VR लिखूं, VR is equal to किसके बराबर होगा, it will be is equal to A into VS minus B into IS, ठीक है. So इन इक्वेशंस को अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं मैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली IR कैन बी रिटर्न, IR जो रिसीविंग एंड की जो करंट है, इसको हम लिख सकते हैं VS डेल्टा माइनस A थीटा R VR एंगल 0 B थीटा B, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं.
जिसको मैं फिर इस इक्वेशन को ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। सो हाउ मच रिसीविंग कम्प्लेक्स पावर जो रिसीविंग एंड रिसीव करता है, what is that complex power? Of course we know that if we know the receiving end voltage and receiving end current, then the complex power that will be delivered to receiving end, it will be equal to 3 into VR IR star. लेकिन IR को मैंने in terms of sending end voltage, in terms of receiving end voltage, in terms of A and B parameters already मैं find कर चुका हूँ IR यहाँ पे with the help of course with the help of these equations, ठीक है। So from here what we have is so S the complex power at the receiving end is equal to this thing, ठीक है। So IR I have calculated here, I have found an expression for IR in this equation of course, ठीक है। Therefore the receiving end complex power will be is equal to 3 into VR IR star। IR को जब IR star करके पुट करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट दिस इक्वेशन, द रिसीविंग एंड पावर इज नथिंग बट 3 into VSBR, VR रिसीविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग एंड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B पैरामीटर का मैग्नीट्यूड। B पैरामीटर इट इज ABCD पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, थीटा B minus delta, delta is power angle, minus 3 into A into VR square divided by B, theta B minus theta A. What is theta B? Theta B basically जो B parameter है उसका angle है complex, because B parameter is a complex number, so it has a magnitude this and it has an angle theta B, ठीक है। ये simple mathematics है basically। इसमें अगर IR star को मैं put करूं, ठीक है, इस इक्वेशन में, और उसके बाद सिंपली कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके फेज एंगल को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है एंड सो ऑन। I basically exploit all those properties to get an expression for the reactive power for the complex power that will be delivered by this transmission line, and that is equal to this thing, ठीक है। और अगर इसको हम in terms of line to, because these are phase voltages, because this relationship that we have in terms of ABCD parameters, ठीक है, this relation is in terms of the phase voltages of course, ठीक है। VS is phase voltage and VR is a phase voltage, so here that's why we have multiplied this VR IR star with 3, because we are talking about 3 phase power, कि ये सिंगल फेज की पावर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 फेज पावर आ गई। सो दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट हियर, इट इज द कम्प्लेक्स 3 फेज पावर, कम्प्लेक्स पावर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। तो इसमें से अगर इस 3 को मैं 3 को अगर मैं अंदर ले जाऊं, इस 3 को √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कर सकता हूं, एक √3 को VS के साथ रखूं और एक √3 को VR के साथ रखूं, ठीक है। √3 VS is nothing but VS line to line voltage, √3 VR is nothing but VR into line to line voltage. So receiving end की जो complex power होगी in terms of line to line voltages, that will be equal to VS line to line into VR line to line divided by B, ठीक है। एंगल थीटा B minus delta. What is delta? Delta is basically receiving end की जो voltage है, ठीक है, उसका एंगल है, और सॉरी सेंडिंग एंड की वोल्टेज, और रिसीविंग एंड की वोल्टेज का एंगल हमने क्या रखा है, 0 रखा है, रेफरेंस, ठीक है, -a। सिमिलरली यहाँ पे इस 3 को मैं √3 को अंदर ले जाऊं, ऑफ कोर्स इस 3 को मैं अंदर ले जाऊं तो ये √3 बन जाएगा, तो और √3 को VR के साथ कंबाइन करूंगा तो VR लाइन टू लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन फाइंड 2 expressions for the active and reactive power at the receiving end, real power and reactive power at the receiving end. So it's the real part of this this complex power at the receiving end that will be basically PR, ठीक है। और उसका real part किसके बराबर होगा, real part will be nothing but this multiplied by cos of theta B minus delta minus this thing multiplied by cos of theta B minus theta A, ठीक है। ये इस तरह के काम हम पहले कर चुके हैं।
So real power at the receiving end will be equal to this much, and reactive power at the receiving end will be given by the second expression, just the imaginary part of this complex power, that will be equal to यहाँ पे इसको this multiplied by sin of theta b minus delta minus a into r, this constant are these products multiplied by sin of theta b minus theta a. So here is what we have. ठीक है, complex power ट्रांसमिशन लाइन में से जो फ्लो करेगी और जो रिसीविंग एंड पे जो डिलीवर होगी. इज इट क्लियर? सो द सेंडिंग एंड पावर, एंड व्हाट अबाउट द सेंडिंग एंड पावर? ये तो रिसीविंग एंड की पावर है, और सेंडिंग एंड की पावर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी पैरामीटर्स क्या होगी? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज 3 इंटू वी एस इंटू आई एस स्टार. ठीक है, सो आई एस किसके बराबर हो गई? यहाँ पे आई आर, रिसीविंग एंड के लिए हमने क्या किया था, आई आर निकालने के लिए हमने क्या किया था? देखिए, रिसीविंग एंड के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आई आर. उसके लिए बेसिकली ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाला जो है इक्वेशन, हमने यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली थी. यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? यहाँ से वी एस इज इक्वल टू ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, ये इक्वेशन बनती है. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन इज ए इसको इस इक्वेशन, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग दिस पावर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी पैरामीटर्स. अगर पहली वाली इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे तो आई एस विल बी इन टर्म्स ऑफ वी आर एंड आई आर. लेकिन इसके बजाय अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूं, यहां से अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो यहां पे हम देखते हैं कि वी आर विल बी इज इक्वल टू डी इंटू वी एस माइनस बी इंटू आई एस बन जाएगा. ठीक है, डी को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूं. तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हमने आई आर लिखा था इन टर्म्स ऑफ वी एस वी आर ए बी पैरामीटर्स. ठीक है, और अगर इसी इक्वेशन को आई एस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आई एस फिर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वी आर एंड आई आर आ जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वी एस. ठीक है, तो सेंडिंग एंड की क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वी एस करंट जो है उसको इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस और ए और बी पैरामीटर्स में के फंक्शन में हम निकालना चाहते हैं आई एस को. तो उसके लिए जब इसका इन्वर्स लेते तो ये इक्वेशन बन जाती है. यहां से हम देखते हैं कि वी आर इज इक्वल टू दिस इज डी इज इक्वल टू ए है. सो ए इंटू वी एस माइनस बी इंटू आई एस. तो यहां से फिर आई एस को मैं निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ विच पैरामीटर्स, ए बी एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस. ये वाली इक्वेशन बन जाती है बेसिकली हमारे पास. ठीक है, सो इसका कंजुगेट ले लें, इस इक्वेशन में पुट करें. वहां से फिर वी हैव द सेंडिंग एंड रियल पावर जो सेंड हो रही है, रिसीविंग एंड सेंड कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन पे इंजेक्ट कर रहा है, और दिस इज द रिएक्टिव पावर दैट इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द ट्रांसमिशन लाइन एट द सेंडिंग एंड. ठीक है, रिसीविंग एंड की पावर ये है और सेंडिंग एंड की पावर ये है. तो हाउ मच पावर, what are the real and reactive transmission line losses? Okay, because a real transmission line is there if it has some resistance as well. This much power is being sent injected into the transmission line, and this much real power is received at the receiving end. So how much power is lost? Energy balance जो है ना, it is always there. ठीक है, so sending end power minus receiving end power, इन दोनों का डिफरेंस ले लें. So this much power is lost in the transmission line. ठीक है, व्हाट अबाउट द रिएक्टिव पावर? दिस इज द सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर है, और दिस इज द रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है. दोनों का डिफरेंस ले लें. सो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और रिएक्टिव पावर लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन लाइन.
Is it clear? Now, if we have a lossless transmission line, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हो तो आपको याद हो कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए वी एस वाज इक्वल टू कॉस बीटा एक्स, ठीक है। अगर पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ एट रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड की बात करें तो उसमें x जो है उन इक्वेशंस में x विल बी इज इक्वल टू l. In that case, Vs will be equal to cos of BL, cos of BL into VR plus J sin of BL into IR. ये Vs की इक्वेशन थी और Is की इक्वेशन क्या थी? सॉरी, Vs की इक्वेशन थी cos of BL VR plus JZC into sin of IR, ठीक है। और IS की इक्वेशन क्या थी? 1/ZC cos of BL into VR प्लस प्लस क्या थी उसमें? प्लस cos of sorry, if I recall correctly, it was IS was equal to 1/ZC sin of BL, ठीक है, sin of BL plus cos of BL into IR, because ये डी पैरामीटर बेसिकली उसको अगर हम इस तरह बात करें कि ए पैरामीटर क्या आता था? ए पैरामीटर वाज cos ऑफ BL. अगर वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन उसकी इक्वेशंस आप देख लें, ए पैरामीटर इसके बराबर आता और बी पैरामीटर बेसिकली इसके बराबर आता। तो ये एक्स डैश क्या है? एक्स डैश इज नथिंग बट ZC इंटू साइन बीटा एल। अगर वो पुरानी इक्वेशन जो पिछले लेक्चर की इक्वेशन देखें तो वहां से बी पैरामीटर आता है ZC इंटू साइन ऑफ बीटा एल, ठीक है। सो थीटा ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos ऑफ BL है, तो cos ऑफ BL इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका जो एंगल है, ए पैरामीटर जो है उसका एक मैग्नीट्यूड तो है cos ऑफ BL, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू तो है cos ऑफ BL, लेकिन इसका जो एंगल है वो 0 के बराबर है। लेकिन जो बी पैरामीटर है, बी पैरामीटर इज जी एक्स डैश क्या चीज है? इट इज ZC इंटू साइन बीटा एल के बराबर है। बेसिकली बी पैरामीटर फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए तो वहां से पता चलेगा कि बी पैरामीटर इज J इंटू ZC इंटू साइन बीटा एल के बराबर है, ठीक है। ZC साइन बीटा एल को उसने एक्स डैश का नाम दिया है, एक्स डैश इज ए कांस्टेंट, ठीक है। J की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड बन जाएगा दैट विल इज इक्वल टू एक्स डैश बन जाएगा, लेकिन इसका एंगल जो है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास J है, ठीक है। अगर हमारे पास एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें रियल पावर जो है, प्रीवियस इक्वेशन जो हमने निकाली है, इसमें 3 फेज पावर जो है दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी? जो डिलीवर हो जाएगी 3 फेज पावर दैट इज इक्वल टू जो रिसीविंग एंड पे जो पावर है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप थीटा ए को आप थीटा बी को 0 के बराबर पुट कर दें, 90 के बराबर पुट कर दें, और थीटा ए जो है उसको 0 के बराबर पुट कर दें, और इसमें थीटा बी जो है ये 90 के बराबर पुट करें। यानी इसको लेट अस डू इट, अगर इस थीटा ए को मैं 0 के बराबर पुट करूं, थीटा बी को 90 के बराबर पुट करूं, तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ये टर्म रह जाएगी मेरे पास। और यहाँ पे क्या है? cos थीटा बी, ये 90 हो गया थीटा बी प्लस डेल्टा, और cos 90 प्लस डेल्टा इट इज माइनस साइन डेल्टा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म रह जाएगी। ये पहले मेरे ख्याल में शुरू वाले लेक्चर्स में भी, चैप्टर 2 में भी या 3 में हमने इस तरह की एक्टिविटी की थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के बजाय वहाँ पे हमने मेरे ख्याल में कोई एक्स की बात की थी। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, वो भी एक ट्रांसमिशन लाइन ही थी, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। सो P3 फेज जो पावर है दैट इज सेंडिंग एंड की लाइन टू लाइन वोल्टेज, रिसीविंग एंड की लाइन टू लाइन वोल्टेज, डिवाइड बाय एक्स डैश। व्हाट इज एक्स डैश? एक्स डैश इज नथिंग, एक्स डैश अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो बी पैरामीटर आपको लेट मी अगेन रिपीट, इट वाज इक्वल टू J इंटू ZC साइन B इंटू L के बराबर था, ठीक है। एक्स डैश इज नथिंग बट ZC क्या चीज है? ZC इज द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन लॉसलेस लाइन हो तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस। और अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो सर्ज इम्पीडेंस किसके बराबर होती है? एक्स डैश,
ठीक है, x डैश इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा एल। तो सर्ज इम्पीडेंस लास्टलेस लाइन में किसके बराबर होती है, l डिवाइड बाय c अंडर रूट। ठीक है, l क्या चीज है, l इज द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट लेंथ, और c क्या चीज है, इट इज द जो कैपेसिटेंस है ट्रांसमिशन लाइन की पर यूनिट लेंथ, उनका रेशो जो है उसका अंडर रूट ले ले, तो दैट इज द सर्ज इम्पीडेंस। उसको जब हम साइन बीटा एल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x आता है। ठीक है, और रिसीविंग एंड की जो पावर है, रिएक्टिव पावर है, दैट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, हाउ मच पावर, ठीक है, आप एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कितना आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहली लिमिट जो आती है उसमें वो आती है थर्मल लोडिंग लिमिट, यानी कितनी पावर डिलीवर कर सकते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, मैक्सिमम पावर ये कितनी डिलीवर कर सकती है। तो लिमिट्स हैं इसमें। तो पहली लिमिट कहाँ से आती है, इट इज द थर्मल लोडिंग कहते हैं इसको, थर्मल लोडिंग लिमिट कहते हैं। थर्मल लोडिंग लिमिट से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करना शुरू होती है तो ऑफ कोर्स that conductor has some resistance, so there will be I square R losses. If more current is there, I square R, इसका मतलब है कि करंट बढ़ने के साथ साथ these losses, ठीक है, I square के लिहाज से अगर किसी उसमें से करंट इंडक्टर कोई रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रही, तो उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस होगी, पावर लॉस होगी, इसमें 1 वाट की पावर लॉस होगी। अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इसी रजिस्टर में से 4 वाट की पावर इसमें डिसिपेट करेगा ये रजिस्टर। अगर 3 एम्पियर की करंट पास हो रही, इसका मतलब है 9 वाट्स इसमें से डिसिपेट होंगे। ठीक है, सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, ऑफ कोर्स दीज ट्रांसमिशन लाइंस दे हैव रेजिस्टेंस, सो देयर विल बी आई स्क्वायर आर लॉसेस एज वेल। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस जब ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में होंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, these conductors they are going to heat up। जब ये heat up हो जाएंगे तो of course whenever anything heats up, what is going to happen, its length is going to increase, और इसकी वजह से फिर इसमें सेग आ जाएगा। ठीक है, अगर करंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उससे ये इतनी ज्यादा हीट अप हो जाएगी जिसकी वजह से इसका सेग इतना ज्यादा होगा कि उसके बाद अगर हीटिंग का इफेक्ट खत्म भी हो जाएगी तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा ये कंडक्टर। ठीक है, हीट की वजह से, हीटिंग की वजह से जो इसमें जो सेग आया है तो ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल इफेक्ट विल बी देयर। ठीक है, तो इसका सेग वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वी डोंट वांट दैट सेग देयर। ठीक है, तो इसके लिए फिर इसमें मैक्सिमम करंट की एक लिमिट होगी, यानी उससे ज्यादा हम इसमें से करंट फ्लो नहीं करवा सकते। ठीक है, सो दैट इज हाउ मच पावर, ऑफ कोर्स रिसीविंग एंड पे पावर जो है वो करंट और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम पावर जो है, जो एक ट्रांसमिशन लाइन जो लिमिट पुट करती है, वो क्या चीज लिमिट पुट करती है, इट इज द थर्मल। ये मैन्युफैक्चरर आपको बताए कि इस कंडक्टर में से इतनी मैक्सिमम 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, 5000 एम्पियर, दैट मच, दैट इज द थर्मल लिमिट फॉर द करंट। ठीक है, तो वहां से हम एक लिमिट रख सकते हैं, यानी पावर उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो पावर की जो थर्मल लिमिट कितनी पावर पुट करती है उस पर, अगर रेटेड वोल्टेज मुझे पता है और थर्मल लिमिट जो कंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है कि इतनी लिमिट है, तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका मतलब है कि ये थर्मल लिमिट है। ठीक है, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है, इससे ज्यादा पावर इसमें से गुजारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ये थर्मल लिमिट है। और एक और लिमिट आती है दूसरी, देखें, ये अगर हम पावर बढ़ाता चला जाऊं, यहाँ पे पावर बढ़ाने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन, गिवन ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसका मतलब है उसकी लेंथ, ये एक्स डैश किसके बराबर है, इट इज ZC इंटू साइन बीटा एल के बराबर है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का बीटा भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है और ZC भी कांस्टेंट। इसका मतलब है पावर को मैं बढ़ा सकता हूं बाय चेंजिंग दिस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू जब 90 हो जाए तो उस वक्त पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन डेल्टा की वैल्यू 90 का मतलब ये है कि जब डेल्टा की वैल्यू 90 हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो उसमें मसला क्या होता है, इसमें स्टेबिलिटी के इश्यूज अगर उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी 90 से बढ़ जाए ये एंगल, तो पूरा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल, ये जो जनरेटर्स जो कनेक्टेड होते हैं दे लूज देयर सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो इस वजह से प्रैक्टिकली ये जो डेल्टा है, इट इज नॉट इक्वल टू 90, इट इज मच लेस देन 90।
ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइंस में दिस डेल्टा it could be line alone is limited to no more than 30 to 45 degrees, यानी ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू 30 और 45 के आसपास हो सकती, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती है ट्रांसमिशन लाइंस में ड्यू टू स्टेबिलिटी इश्यूज। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी इश्यूज है इसमें बाकायदा एक पूरा एक कोर्स होता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल के नाम से। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी थोड़ा सा नईम साहब 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, तो उसमें इस तरह की चीज़ें वो कवर करेंगे। ठीक है, सो फॉर प्लानिंग एंड अदर पर्पसेस एक और चीज़ है, एक दो लिमिट्स आ गई ना इसमें, एक ये हो गई थर्मल लिमिट हो गई, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट की जा सकती है वो यहाँ से आ गई एक लिमिट, और दूसरी फिर लिमिट कहाँ से आ गई, एक तो ये लिमिट आ गई और दूसरी लिमिट कहाँ से आ गई, दूसरी लिमिट आ गई ये इसकी स्टेबिलिटी की वजह से जो थीटा जो है डेल्टा जो है ये जब हम 30 में रखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 रखूंगा, जब ये वोल्टेज भी मैं फिक्स करता हूँ, ये भी वोल्टेज में फिक्स करता हूँ, ये भी फिक्स है। ठीक है, और ये 90 रखो तो मैक्सिमम पावर आती है, लेकिन मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं करवा सकते इस लाइन के थ्रू क्योंकि स्टेबिलिटी की इश्यूज की वजह से, तो डेल्टा में भी 30 और 35 डिग्रीज। मैक्सिमम 90 है लेकिन 90 से लेस पावर ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन होगी वो इसमें 90 पुट करके जो पावर होगी हमेशा उससे कम ही डिलीवर करेगी। ठीक है, मच लेस देन व्हाट इज द स्टेबिलिटी जो लिमिट है ये उसके ऊपर मैक्सिमम वो है। और एक और मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ये थर्मल जो है थर्मल लोडिंग लिमिट जो है एक ये है, और ये दोनों है ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन लाइन की एक्चुअल जो होगी उसमें से फिर इन दोनों में से इन दोनों के लिहाज से फिर आप देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स। एक और चीज है, एक और जनरली वी राइट दिस पावर of delivered by a transmission line, इसको in terms of its surge impedance loading के फॉर्म में हम लिखते हैं, in terms of surge impedance loading as well। ठीक है, फार्मूला जो हम इसमें लिखते हैं सर्ज इम्पीडेंस का, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल इन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है, इट इज द पावर डिलीवर्ड टू ए लोड व्हेन a transmission lossless transmission line it is terminated, ठीक है, by its surge impedance। सर्ज इम्पीडेंस किसके बराबर है, अंडर रूट एल डिवाइड बाई सी का अंडर रूट, एल डिवाइड बाई सी के अंडर रूट। ठीक है, ये एक प्योर रेजिस्टेंस बन जाती है जब इसको टर्मिनेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, दैट इज द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सो सर्ज इम्पीडेंस रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई जेड सी के बराबर होती है। रेटेड वोल्टेज स्क्वायर जो ट्रांसमिशन लाइन की 220 की लाइन है ऑफ कोर्स, तो उसमें रेटेड वोल्टेज और उसकी जो सर्ज इम्पीडेंस है उसका स्क्वायर करें और ZC कर दें, ZC से डिवाइड कर दें, तो ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है ट्रांसमिशन लाइन की इन केवी, दिस इज इन केवी। ठीक है, दिस सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस they could be different from the, they could be मसलन सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड लाइन की रेटेड वोल्टेज भी हो सकती है, उससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने ये रखी है। यहाँ पे देखें पावर की इक्वेशन ये है VS लाइन टू लाइन और VR लाइन टू लाइन, ठीक है, डिवाइड बाय x डैश साइन डेल्टा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस इक्वेशन को V रेटेड से डिवाइड करूँ, लाइन की जो रेटेड वोल्टेज है, और इसको भी V रेटेड से डिवाइड करूँ और इसके साथ V रेटेड से मल्टीप्लाई करूँ, V रेटेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, same thing, because we are interested in writing this equation in terms of the surge impedance loading of the transmission line. That's why इसको हम V rated से डिवाइड करें, इसको V rated से डिवाइड करो और V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे चूंकि V स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ V rated से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एट द सेम टाइम x डैश जो है यहाँ पे x डैश इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, z, if you remember this was equal to ZC into sin BL के बराबर था। सो उसको मैं रिप्लेस करता हूँ ZC into sin BL से। सो ये ZC into sin BL। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को V रेटेड स्क्वायर से डिवाइड किया, V रेटेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया।
ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने x डैश को मैंने लिखा ZC sin बीटा L लिखा, ठीक है। सो व्हाट आई गेट इज, उसके बाद टर्म्स को बेसिकली मैंने रीअरेंज किया है। वी स्क्वायर से जो वी रेटेड स्क्वायर से जो डिवाइड किया था उसमें से एक वी रेटेड को मैंने वी एस के अंडर रखा और एक वी रेटेड को मैंने वी आर के अंडर रखा, और एक्स डैश को मैंने लिखा था जेड सी इंटू साइन बीटा एल था, तो जेड सी को मैंने वी रेटेड स्क्वायर के नीचे लिखा और साइन डेल्टा डिवाइड बाय साइन बीटा एल इसको यहीं पे रखा। एंड व्हाट इज दिस थिंग, this is nothing but this is surge impedance loading, SIL loading, if you recall from the previous lecture, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ SIL, बट व्हाट इज दिस थिंग, VS डिवाइड बाय V रेटेड, एक्चुअल जो वोल्टेज है VS है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटेड वोल्टेज है वो क्या है, दिस इज दिस थिंग। तो जब एक्चुअल वोल्टेज जो उस वक्त अंडर गिवन कंडीशन जो एक्चुअल वोल्टेज है उसको रेटेड वोल्टेज से डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली व्हाट वी गेट द पर यूनिट वोल्टेज, सेंडिंग एंड की पर यूनिट वोल्टेज किसके बराबर है, एक्चुअल सेंडिंग एंड की वोल्टेज डिवाइड बाय इट्स रेटेड वोल्टेज, सो सेंडिंग एंड पर यूनिट वोल्टेज। Similarly, receiving end per unit voltage multiplied by, this is nothing but this is surge impedance loading multiplied by sin delta जो कि already हमारे पास है, divided by sin beta L. This is very very important equation. अब देखिए, थ्री फेज पावर जो है, रियल पावर जो डिलीवर करती है, ये S अगर ये फिक्स हो, अगर मैं इसको फिक्स करूं तो गिवन ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको पता है कि ये चीज भी क्या है, सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग फॉर ए गिवन पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। डेल्टा भी हमारे पास अगर फिक्स है तो ये फिर जो ट्रांसमिशन लाइन की पावर डिलीवरिंग कैपेबिलिटी है, कितनी पावर डिलीवर करती है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन की वेव लेंथ पे डिपेंड करती है। वेव लेंथ की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वेव लेंथ कम ज्यादा हो, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है ये कम ज्यादा हो, ये इस पे सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती है, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हो तो ZC किसके बराबर होता है, ZC इज नथिंग बट कैपिटल L डिवाइड बाय कैपिटल C अंडर रूट, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ इंडक्टेंस डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, उसका अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ाता चला जाऊं, ठीक है, तो इसमें जो पावर डिलीवर करेगी एट रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन लाइन, वो उसकी कैपेबिलिटी जो मैक्सिमम जो पावर डिलीवर कर सकती है, या मैक्सिमम पावर, अगर ये डेल्टा को मैं 90 के बराबर कर लूं तो मैक्सिमम जो पावर डिलीवर कर सकती है ट्रांसमिशन लाइन, वो उसकी लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ क्या होती चली जाती, कम होती चली जाती है। स्टेबिलिटी लिमिट अगर मैं देखना चाहूं तो इसका मतलब है जितनी ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं लेंथ बढ़ाता चला जाऊं तो मैक्सिमम पावर जिसके बाद ये लाइन ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, वो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर कर सकती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। सो हियर इज एन एग्जांपल। पहले मैं इस ग्राफ को देखता हूँ फिर एक एग्जांपल को देखता हूँ। ये देखें, दिस इज द पावर that the transmission line can deliver in terms of per unit of जो सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग है। इसमें से अगर मैं सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग को मैं इस साइड पे ले आऊं तो पावर आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑफ सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग, ठीक है। कितना टाइम्स सर्ज एम्पीडेंस से जो पावर डिलीवर है वो कम है, या कितना टाइम उससे डिलीवर फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन। ऑफ कोर्स दिस इज ए प्रॉपर्टी, आप समझ लें ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो P डिवाइडेड बाय, जब हम ऑफ कोर्स वी रेटेड इसको अगर हम फिक्स करते ट्रांसमिशन लाइन की रेट वोल्टेज और ZC, दीज आर कांस्टेंट्स, सो दिस सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग इज ए कांस्टेंट। जो पावर डिलीवर हो रही है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ सर्ज एम्पीडेंस के पर यूनिट में, पावर डिलीवर को मैं जब इसको इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है, पर यूनिट ऑफ सर्ज एम्पीडेंस पावर मेरे पास आ जाएगी, और दूसरी साइड पे मेरे पास क्या रह जाएगी, VS पर यूनिट R पर यूनिट डिवाइड बाय साइन 2 पाई L डिवाइड बाय लैम्डा साइन ऑफ डेल्टा होगी। अब मैं ये देखता हूँ कि जो लिमिट्स हैं, दो लिमिट्स की हमने बात की थी, एक थर्मल लिमिट है और दूसरी स्टेबिलिटी की वजह से सिंक्रोनिज्म जो लूज हो जाएगी उसकी वजह से डेल्टा अगर 90 रखें, अगर मैं डेल्टा 90 रखूं तो पर यूनिट में जो पावर डिलीवर करेगी ये ट्रांसमिशन लाइन, ये किसके बराबर होगी, VS पर यूनिट R पर यूनिट डिवाइड बाय साइन 2 पाई L डिवाइड बाय लैम्डा, क्योंकि इस S को SIL को मैंने दूसरी साइड पे ले गया और इसको 90 के बराबर पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इस इक्वेशन में
ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ में कम करता चला जाऊं, इसको SIL को मैंने ऑफ कोर्स दूसरी साइड पे ले आया हूं, और मैक्सिमम पावर के लिए ये साइन डेल्टा किसके बराबर हो, 1 होगा। अगर मैं लाइन की लेंथ को कम करता चला जाऊं, शॉर्ट करता चला जाऊं, डिस्टेंस लाइन की लेंथ को कम करता चला जाऊं, तो इसकी मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। थ्योरेटिकली जो मैक्सिमम ये जो पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है डिलीवर करेगी वो बढ़ चली जाएगी, बिकॉज साइन 2 पाई लैम्डा एल डिवाइड बाई लैम्डा है। एल को कम करने से साइन ऑफ ये एंगल कम होगा, और ये नंबर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का जो नंबर है, इट विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर क्या होता चला जाएगा, ये वाला फैक्टर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बेसिकली ये लाइन की लेंथ है, ये पावर है जो लाइन डिलीवर कर सकती है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ पर यूनिट, फ्रैक्शन ऑफ सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के पर यूनिट में किया है। ठीक है, जब 200 किलोमीटर मसलन इट इज मे बी 100 किलोमीटर हो, ये थ्योरेटिकल है, जो प्रीवियस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ। 200 किलोमीटर, लेट अस से दैट लाइन लेंथ इज 200 किलोमीटर। ठीक है, और एक किसी एग्जांपल के लिए उसने दिया जिसमें लाइन की जो सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग इज दिस मच, डेल्टा इज, लेट अस, हमारे पास एक लाइन है, उसके लिए लेमडा उसने ऑलरेडी निकाला। लेमडा इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पे डिपेंड करती है, ये लाइन के पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये एक कांस्टेंट है, एक मतलब लाइन बिछाते हैं तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक लाइन है, उसकी लेंथ 200 किलोमीटर है। ठीक है, हाउ मच रियल पावर इट विल डिलीवर, ठीक है, P वो किसके बराबर हो, मैक्सिमम कितनी डिलीवर कर सकती है। यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स में 200 लिखूंगा, लेमडा 5000 में भी, ये डिपेंड करता है कि वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ए गिवन लेमडा L इज 200। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर करेगी, मैक्सिमम पावर के लिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 1, डेल्टा शुड बी 90। SIL को मैं इस साइड पे ले आऊंगा, तो मैक्सिमम पावर पर यूनिट ऑफ SIL किसके बराबर होगी, इनके बराबर होगी। ये जो यहाँ से जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैं ले आता हूँ। ठीक है, सो फॉर ए गिवन ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर अगर लेंथ हो, theoretically how much maximum power this transmission line it can deliver, this much power, almost 4 times the SIL rating of the transmission line। SIL इतनी है, तो इसका मतलब है अगर 200 किलोमीटर हो तो ये ट्रांसमिशन लाइन कितनी थ्योरेटिकली कितनी पावर डिलीवर कर सकती है, तकरीबन 3200 मेगावाट ये डिलीवर कर सकती है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर अगर इसकी लेंथ है तो दिस मच पावर। ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए तकरीबन कोई 8 टाइम्स द SIL। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को मैं बढ़ाता चला जाऊं, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, यहाँ पे देखें लेंथ को बढ़ाते चले जाएं तो ये फैक्टर क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग मैक्सिमम पावर एक ट्रांसमिशन लाइन जो डिलीवर कर सकती है विदाउट विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 किलोमीटर की अगर लाइन की लेंथ है तो मैक्सिमम पावर वो कितनी डिलीवर कर सकती है, जितनी इसकी सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग है। ठीक है, उससे ज्यादा ये डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर जो डिलीवर करती है ये सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के बराबर है। 2 का मतलब है सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के डबल है, जो मैक्सिमम पावर थ्योरेटिकली जो ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर कर सकती है। 4 का मतलब है सर्ज एम्पीडेंस के मुकाबले में 4 टाइम्स है मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर कर सकती है। तो ये थ्योरेटिकल है, बेसिकली ये थ्योरेटिकल लाइन है जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ 2200 किलोमीटर की लेंथ हो तो वो ज्यादा पावर डिलीवर कर सकती है। 800 किलोमीटर की लेंथ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स द सर्ज एम्पीडेंस लोडिंग के इतनी पावर उसको डिलीवर करना है, ठीक है, और 800 किलोमीटर की लेंथ की लाइन है। सो दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर जिसके लिए ये डेटा गिवन है, वो उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है उतनी पावर डिलीवर करने की। लेकिन अगर उसी लाइन की अगर लेंथ कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर हो जाए, देन दिस लाइन कैन डिलीवर दैट मच पावर। ठीक है, एक तो ये थ्योरेटिकल लिमिट हो गई। प्रैक्टिकल लिमिट क्या है, बिकॉज दिस एंगल इट कैन नॉट बी इक्वल टू 90। ठीक है, 90 के बराबर नहीं हो सकते, इट कुड बी 30 डिग्रीज फॉर एग्जांपल। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल उसने डेल्टा को 30 लिया है, तो प्रैक्टिकली
ये ट्रांसमिशन लाइन कितनी डिलीवर कर सकती है? दिस मच पावर, 200 किलोमीटर हो लेंथ, practically this much power it can deliver, 2 times the surge impedance loading. Theoretically कितनी डिलीवर कर सकती? It can deliver 4 times the surge impedance, approximately 4 times the surge impedance loading. लेकिन practically it can deliver only two times the surge impedance loading. अगर इसकी लेंथ 200 किलोमीटर है, अगर 800 किलोमीटर है तो it's theoretically its power is that it can deliver is 800 किलोमीटर पे 800 किलोमीटर पे तकरीबन मोर देन इक्वल टू, इससे थोड़ी सी ज्यादा डिलीवर करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली कितनी करेगी? प्रैक्टिकली बिकॉज दिस डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, practically it is the actual power that this transmission line can deliver, it will be less than 860.8 मेगावाट से कम डिलीवर करेगी। एक तो ये हो गई, ठीक है, ये स्टेबिलिटी लिमिट है। लेकिन एक और चीज जिसकी मैंने बात की थी, दैट वाज द थर्मल लिमिट। थर्मल लिमिट इस ट्रांसमिशन लाइन की, जिसका ये बेसिकली एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, बुक की एक सिमुलेशन है वो उसने की है, वहां से मैंने बेसिकली ये इमेज लिया है, ठीक है। थर्मल लिमिट इजाजत नहीं देता है कि ट्रांसमिशन लाइन में से 3.5 टाइम्स सर्ज एम्पीडेंस से ज्यादा इस ट्रांसमिशन लाइन में से पावर नहीं गुजारी जा सकती, रियल पावर, ठीक है। वो कितनी हो गई? वो तकरीबन 3.5 टाइम्स की बात करें भी 2800 मेगावाट तकरीबन, ठीक है, उससे ज्यादा इसमें से पावर नहीं गुजारी जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 किलोमीटर की लाइन की लेंथ है, theoretically it can deliver a very high amount of theoretical पावर डिलीवर कर सकता है। लेकिन 30 डिग्री एंगल अगर हम रखते हैं, प्रैक्टिकली इट कैन डिलीवर दिस मच पावर, मे बी 100 किलोमीटर की लेंथ की अगर वायर है तो 5 टाइम्स द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर ये डिलीवर कर सकती है प्रैक्टिकली, विदाउट बिकमिंग अनस्टेबल, ठीक है, विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द जनरेटर्स, ठीक है। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि ये तकरीबन 4000 मेगावाट डिलीवर कर सकती है। लेकिन जो थर्मल लिमिट है वो 4000 मेगावाट डिलीवर करने की इजाजत नहीं देती है, ठीक है। जो एक्चुअल जो डिलीवर कर सकती, क्योंकि थर्मल लिमिट कहती है कि ये तकरीबन 2800 मेगावाट से ज्यादा ये डिलीवर नहीं कर सकती है, ठीक है। उसको हीट, उससे जो कंडक्टर्स हीट अप हो जाएंगे, उससे फिर इरिवर्सिबल उनमें चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लेंथ इज दियर, सो प्रैक्टिकल लोडेबिलिटी विदाउट जो है थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी लिमिट हमारे पास ये है, जो प्रैक्टिकल जो है इट विल बी ऑलवेज लेस देन ये वाली जो लिमिट है उससे नीचे कहीं होगी। इज इट क्लियर? सो हियर इज a simple example is there, ये मैंने ली है ग्लोवर की किताब है, उसमें से ली है। neglecting the line losses, find the theoretical stability limit, theoretically limit for a 300 kilometer line, example 5.2 है। assume that इसमें से surge impedance ऑलरेडी उसने बता दिया है हमें, 5000 किलोमीटर इसकी लाइन की वेव लेंथ है। वेव लेंथ किसके बराबर होती है? लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई और बीटा के बराबर है लेंथ, ठीक है। और बीटा किसके बराबर है? इफ यू रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, बीटा वाज इक्वल टू गेमा, एक हमने एक प्रोपगेशन कांस्टेंट डिफाइन किया था गेमा, दैट वाज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर था, ठीक है। और गेमा किसके बराबर भी था? स्मॉल जेड स्मॉल वाई अंडर रूट के बराबर भी था। तो उसका रियल पार्ट अल्फा के बराबर था और उसका इमेजिनरी पार्ट जो था वो किसके बराबर था? इट वाज इक्वल टू बीटा के बराबर था। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हो तो बीटा किसके बराबर होता है? बीटा इज इक्वल टू एल इंटू सी अंडर रूट के बराबर होता है, इफ यू रिकॉल फ्रॉम आवर इंटू ओमेगा, ठीक है, फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स को जरा जाके देख लें। एल इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड सी इज द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। बीटा हमें पता हो तो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड द लैम्डा, ठीक है। फॉर दिस एग्जांपल सर्ज एम्पीडेंस इज इक्वल टू, सर्ज एम्पीडेंस किसके बराबर होगी? क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल की बात की है तो प्रीवियस एग्जांपल में बेसिकली उसने एल और सी को डिफाइन किया होगा, उसके बेस पे उसने ये निकाला है,
ठीक है। सो दिस इज द सर्ज इम्पीडेंस विच इज इक्वल टू कैपिटल L डिवाइड बाय कैपिटल C अंडर रूट। ये हमारे पास है। रिसीविंग एंड और ट्रांसमिटिंग एंड की जो वोल्टेजेस हैं दोज आर 760 kV वोल्टेज है, और ये रेटेड वोल्टेज भी ट्रांसमिशन लाइन की यही है। तो सर्ज इम्पीडेंस किसके बराबर होगी? इट इज सिंपली 765 का स्क्वायर डिवाइड बाय सर्ज इम्पीडेंस, वोल्टेज का स्क्वायर, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय सर्ज इम्पीडेंस 2199 मेगावाट। This is the surge impedance loading. Length is 300 kilometer. Lambda is 5000 kilometer. P max previous equation में sin delta will be equal to 1. ठीक है। So per unit sending end voltage क्या, rated voltage भी 765 है per unit। रेटेड वोल्टेज को मैं सेंडिंग एंड वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट आ जाएगी। रिसीविंग एंड भी वही है, पर यूनिट 1 आ जाएंगे। ठीक है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है डिवाइडेड बाय दिस थिंग। ठीक है। सो मैक्सिमम जो पावर ये ट्रांसमिशन लाइन सेंड कर सकती है थ्योरेटिकली दैट इज 5974 मेगावाट। ये ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये इतना ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ में बढ़ाता चला जाऊं, ठीक है, 300 के बजाय अगर मैं 600 कर दूं तो ऑफ कोर्स देन दिस फैक्टर इट विल बिकम बिगर। ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेबिलिटी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी जो लिमिट है, ठीक है, वो मैक्सिमम पावर वो इस इक्वेशन से आती है, ठीक है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 1। और जब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं तो मैक्सिमम पावर जो वो डिलीवर कर सकती है वो कम होती चली जाती है। दिस इज फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। A three-phase power of 700 megawatt is to be transmitted to a substation located 315 kilometer from the source of power. 700 megawatt है, इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है। ठीक है। कहाँ से? टू ए सबस्टेशन, एक सबस्टेशन को ट्रांसमिट करना है। कितना दूर है? 315 किलोमीटर दूर है। आप ये समझ लीजिए तरबेला से समझ लें कि फैसलाबाद तक पावर ट्रांसमिट करनी है। और कितनी ट्रांसमिट करनी है? इट मे बी 315 किलोमीटर फ्रॉम तरबेला टू फैसलाबाद, इफ वो जिसको क्या कहते हैं, नाक की सीध वाला डिस्टेंस। ठीक है। सो 315 किलोमीटर इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पावर। तरबेला से आपने फॉर एग्जांपल फैसलाबाद ट्रांसमिट करनी है। ठीक है। फॉर द प्रिलिमिनरी लाइन डिजाइन, आपने एक लाइन डिजाइन करना है इतनी पावर ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है ट्रांसमिशन जो, और आपने लाइन आपने बिछानी है फॉर एग्जांपल 200 फॉर एग्जांपल 500 केवी की लाइन डालनी है। ठीक है। तो सेंडिंग एंड की वोल्टेज 500 केवी है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है इट कुड बी 0.9 पर यूनिट। ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, सेंडिंग एंड की 5, और ट्रांसमिशन लाइन भी 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। तो VS हमारे पास क्या हो जाएगा? VS पर यूनिट में 1 हो जाएगा, क्योंकि सेंडिंग एंड की वोल्टेज भी वही है जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज कितनी है? इट इज 450 केवी है फॉर एग्जांपल। तो पर यूनिट में कितनी हो गई? इट विल बी 0.9। ठीक है। लैम्डा कितना इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए? 500 केवी है। और ZC इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या है? 320 ओम है। और डेल्टा क्या है? प्रैक्टिकली जो डेल्टा है, थ्योरेटिकली डेल्टा कुड बी अप टू 90 डिग्रीज। ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट है। तो स्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए डेल्टा की वैल्यू इज बिटवीन मे बी 30 and 40 डिग्रीज। तो प्रैक्टिकली डेल्टा की वैल्यू आपने ये रखी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लोडेबिलिटी इक्वेशन, जो प्रीवियस इक्वेशन थी, लाइन लोडेबिलिटी इक्वेशन डिटरमिन ए नॉमिनल वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हाँ, इसमें बेसिकली हमने ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज निकालनी है। उसके लिए कंडीशन हमने ये रखी कि सेंडिंग एंड की जो वोल्टेज है दैट इज सेम एज द रेटेड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या है? इट इज 0.9 टाइम्स द रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। और इतनी पावर अगर आपने ट्रांसमिट करवानी, यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, इतनी पावर आपने ट्रांसमिट करनी है। ठीक है। और ये हमारे पास ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है। ठीक है। और आपने अलाउ करना है कि जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज 0.9 टाइम्स द ट्रांसमिशन लाइन, जो भी आपने सिलेक्ट की, 220 है, 500 है, वट एवर द वोल्टेज इज,
उससे जो है उस दैट मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इतनी कम हो सकती है रिसीविंग एंड की वोल्टेज। अब आपने इन कंडीशंस में आपने ट्रांसमिशन लाइन की कितने केवी की ट्रांसमिशन लाइन होगी वो आपने डिटरमिन करना। तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। साइन डेल्टा, क्योंकि 36 ऑलरेडी उसने बताया है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो है हमारे पास 700 ये हमने ट्रांसमिट करना है। ZC उसने ऑलरेडी बताया है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग किसके बराबर होगी? वी रेटेड डिवाइड बाय ZC, वी रेटेड स्क्वायर डिवाइड बाय ZC। वी रेटेड हमने बेसिकली फाइंड करना है। वी पर यूनिट उसने हमें बताया है, रेटेड पावर नहीं बताई है लेकिन पर यूनिट उसने बताया है। इसका मतलब है सेंडिंग एंड की वोल्टेज इज सेम एज द ट्रांसमिटिंग जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज है। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 0.9, दिस बीटा, ठीक है, बीटा किसके बराबर है? बीटा इज बीटा इट कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है, बीटा इज ZC हमें पता है 320 ओहम्स, ठीक है, और सो बीटा को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा किसके बराबर है? इफ यू रिकॉल लेम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय बीटा के बराबर होता है, ठीक है। या यहाँ पे इसमें सॉरी कौन सी इक्वेशन हम देख रहे हैं? हाँ, तो इसको बेसिकली हमने क्या किया, बीटा को इन टर्म्स ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय लेम्डा के फॉर्म में लिखा। लेम्डा ऑलरेडी उसने बता दिया, तो इसका मतलब है लेंथ भी उसने बता दी। तो ये चीज भी हमें पता है, ये चीज भी हमें पता है, ये चीज भी हमें पता है, कितनी पावर डिलीवर करनी वो भी हमें पता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग किसके बराबर है? वी स्क्वायर डिवाइड बाय ZC के बराबर है। ZC भी हमें पता है, तो इसका मतलब वी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, रेटेड जो वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। सो 700, तो यहां से इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन अगर आपने इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है और ये एंगल है, तो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज क्या होनी चाहिए? इट शुड बी 400 kV ट्रांसमिशन लाइन। अगर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन आप डिजाइन करेंगे, ठीक है, सो अंडर दीज कंडीशंस दिस ट्रांसमिशन लाइन इट विल ट्रांसमिट 700 मेगावाट की जो ट्रांसमिट पावर, इतनी पावर ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रांसमिशन लाइन फॉर द ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल ऑब्टेन्ड इन ए, अब आपने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपने डिजाइन किया, प्रिलिमिनरी डिजाइन की, ठीक है, उसमें आपने कहा कि इसकी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज 400 kV है। अब दूसरा पूछता है फॉर द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ऑब्टेन्ड इन ए, यहाँ पे आपने जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज निकाली, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। ये मैक्सिमम थ्योरेटिकली कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकती है? थ्योरेटिकली जो ट्रांसमिट करेगी उसके लिए ये जो एंगल किसके बराबर होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए। ऑलरेडी चूंकि वी आपने ऑलरेडी एस्टिमेट किया है, डिटरमिन किया है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दिस थिंग इज नोन टू यू, इसमें वी पर यूनिट, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, और SIL में वी रेटेड स्क्वायर डिवाइड बाय ZC क्या चीज आ जाएगा? SL किसके बराबर होगा? वी रेटेड स्क्वायर डिवाइड बाय ZC। तो रेटेड वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव डिटरमिन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटेड वोल्टेज वो आपने यहाँ पे बताई है, ठीक है, और ZC साइन बीटा L जो है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर द इक्विवेलेंट लाइन रिएक्टेंस फॉर द लॉसलेस लाइन इज दिस। फॉर ए लॉसलेस लाइन द मैक्सिमम जो पावर होगी, ठीक है, दैट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें सारे वैल्यूज अब हमें पता है। सिर्फ आपने चूंकि उसने मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की बात की है, तो डेल्टा को आपने 90 के बराबर पुट करना है। तो ये जो 400 kV की जो लाइन है, इसमें कितनी कितनी पावर ट्रांसमिट करने की, मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, दैट इज विदाउट द सिस्टम टू बी अनस्टेबल, ठीक है। सिंक्रोनिज्म जनरेटर्स जो है, सिंक्रोनिज्म लूज, उस ये बिल्कुल एक लिमिट है, इसके फौरन बाद, इस लिमिट के बाद ही वो जो जनरेटर्स जो है वो अपनी सिंक्रोनिज्म लूज करेंगे और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो लिमिट बेसिकली ये है 1165 मेगावाट है। लेकिन प्रैक्टिकली इसी लाइन में से हम कितनी पावर हम कर सकते हैं? दैट पावर इज इक्वल टू 700 मेगावाट, जिसके लिए आपने कहा था कि इस लाइन की जो वोल्टेज है दैट इज 400 kV की लाइन जो आपने डिजाइन की थी,
वो इतनी पावर डिलीवर करवाने के लिए आपने डिज़ाइन की थी। आपने कहा कि अगर 400 केवी की लाइन अगर बिछा दें फैसलाबाद और उसके दरमियान, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए ये पैरामीटर्स ऑफ कोर्स गिवन है, ठीक है, तो उस लाइन की जो वोल्टेज है वो 400 केवी होगी, तो दैट विल ट्रांसमिट बेसिकली दिस मच रियल पावर फ्रॉम तरबेला टू फैसलाबाद, ठीक है। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मैक्सिमम कितनी डिलीवर कर सकती है, इतनी डिलीवर कर सकती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कितनी डिलीवर कर सकती है, प्रैक्टिकली कितनी डिलीवर करेगी, इट विल बी 700 मेगावाट। ओके, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके सर। ओके बेटा, पढ़ ले। जी सर। जी, मैं कह रहा था सर पढ़ना शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग ये वाला ऑफ। चैप्टर? हाँ, मैं कह रहा था सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। मैं वो तो आप लोगों की कंट्रोल में है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं सर, आप